Okay, in this video we will learn about some basic structures and bond lengths and bond strengths. Okay, so now what we will do is suppose first of all you should remember from the previous video that in carbon, if there is sp3 hybridization, then in the four sp3 hybridized orbitals, in the four sp3 hybridized orbitals that forms, how they orient, that I have shown you. They orient in this way, right? This is one sp3 hybridized orbital. This is another sp3 hybridized orbital. This is another sp3 hybridized orbital, and this is another sp3 hybridized orbital. So they have formed tetrahedral or tetragonal structure. Why tetrahedral or tetragonal structure? Because they have arranged themselves in such a way in the space that they will have the minimum amount of repulsion. Okay, so they have arranged themselves in the maximum distance, creating an angle of 109 degree 28 seconds in case of sp3 hybridization. And each of these sp3 hybridized orbital, these are this 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. These are the four sp3 hybridized orbitals. Okay, now they intermix, and from the sp3 hybridized orbitals, 4 sp3 hybridized orbitals. Why sp3? Because 3p orbitals. And so what you should keep in mind is that there is sp3 means 3p orbitals, spp, these have mixed. So there is 75% of a p character and 25% of s character. Okay, so these all were in the case of sp also. The structure is now what happens is that when it will form a molecule CH4, is as easy to understand. Now H has one electron which will come and overlap with the one electron in it is 1s1, right? 1s1 will come and overlap from this side, 1s1 will come and overlap from this side, 1s1 will come from overlap from this side, 1s1 and come and overlap from this side. So the structure of CH4 is CH, H, H, and then H. So this is the tetrahedral structure or tetragonal structure of the CH4 molecule. Okay, so I hope that you understand. Now if you see another alkane now if you look into this, is so CH4. Okay, so sp3 hybridized orbitals overlapped with the s orbitals. Now the character of the everything depends on sp3 hybridized orbitals, character of the structure, shape of the molecule. Okay, for example, let us understand C2H6. C2H6 means what? CH3 bonded to CH3, if you break it down. Okay, now what happens? This CH3, now how will you understand that it is sp3 hybridized or sp2 hybridized? See, as because all single bonds are there, if you open up CH3, it is the easiest way to understand. If you open up CH3, as because all single bonds are there, that's why this will also be sp3 hybridized, this will also be sp3 hybridized. Because why? Because if double bond is there, suppose for example you are bonding with CH2 double bonded to CH2, if you open it up, C, that is HH, double bond, C, that is HH, so double bond. This carbon atom is also sp2 hybridized, this carbon atom is also sp2 hybridized. And if there is triple bond anywhere, C triple bonded to C, and here is H and here is H, this is also sp hybridized, this is also sp hybridized. In fact, in the longer chains, suppose if you look into the longer chains, I'll show you. Suppose if you look into the longer chain, suppose for example CH3, CH2, 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 CH3. This is one of the longer chain of alkane, right? You know all these things. This is an
longer chain of a alkane, meth, eth, pro, but, pentane. So if you open it, it also has single bond, all single bonds. So this is sp3 hybridized, this is sp3 hybridized, this is sp3 hybridized, this is sp3 hybridized, this is also sp3 hybridized. Sir, how do you get to know all these are sp3 hybridized? Because all have single bond all around. A molecule in which, or a chain in which a carbon atom is linked with all single bonds to the other atoms is sp3 hybridized. Okay. Suppose for example, if you go into this CH3 CH double bonded to CH, single bonded to CH3, suppose this is sp3 hybridized, this is sp3 hybridized, this is sp2 hybridized, this is sp2 hybridized. Again, if you make it like this, CH3 C triple bonded to C triple bonded to CH3, this is sp2 hybridized, sp3 hybridized, this is sp hybridized, this is sp hybridized, this is sp3 hybridized. Suppose for example you go like this, CH3 CH2 single bonded to CH sorry single bonded to CH double bonded to CH single bonded to CH3, okay, single bonded to C triple bonded to C H. So this is sp hybridized, this is sp hybridized, this is sp3 hybridized, this is sp2 hybridized, this is sp2 hybridized, this is sp3 hybridized, this is sp3 hybridized. How do you know? Because you will, if you face difficulty in this condensed formula, what do? Open structure formula you draw and see carbon ke around mein how many bonds are there. If carbon ke around mein there is single bond always, it is sp3 hybridized, sp3 hybridized and sp3 hybridized. But if carbon ke around mein there is double bond, it is sp2 hybridized, sp2 hybridized, and if there is triple bond, it is sp hybridized, sp hybridized. Okay, now I will do justification of this statement that I have made here, that okay sir, you have told us to remember like this, I can remember like this. You see any functional group, anything, you always apply this buddhi. Okay, there is no need of thinking much. Now functional group, to dhire dhire different functional groups you will learn in this class. Okay, so again what happens is that you have understood the methane ka structure. Like I will show you ethane ka structure so that little bit clearance goes into your mind. Suppose CH3 is bonded to CH3. Now what will happen is, an sp3, this carbon is sp3 hybridized. How they have bonded? Just imagine that this carbon is sp3 hybridized. So sp3 hybridized means this kind of structure. I'm not drawing the smaller parts. Okay, let me draw. Okay, so this is the structure. Now what will happen is, another carbon molecule will be there. Let that big structure go. Let me draw in this way. Suppose this is sp. Let me draw a little bit small. Okay, why I am drawing so big? Suppose this is the, in this way I am drawing. Okay, so you will tell that what is the tetrahedral structure. Wait. Okay, now see, now I will show you. Suppose I will show you the way I have shown you, so that then again no more question arises. Suppose this is the sp3 hybridized orbitals. Now here imagine a carbon. From here imagine a carbon. Now this is also sp3 hybridized orbital. This is also sp3 hybridized orbital. Now see what has happened. This carbon was sp3 hybridized with a tetragonal, if you want to notice the tetragonal structure, this is the tetragonal structure. Okay,
See, the tetragonal structure is there, exist of sp3 hybridization, just like methane. यहाँ पे H आ सकता था, but then what happened is another tetragon. This is the another tetragonal structure in this way. Okay. Now this has what has happened is sp3 hybridized orbital has bonded with sp3 hybridized orbital with axis wise overlapping. So this is an sp3 sigma bond. Okay, so this is an sp3 sigma bond. Now what happens here, one H will come, here one H with 1s orbital 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 will come, and here one H with 1s orbital will come. So it is CH3 bonded to CH3. Now if you open up this bond, CH H single bonded to CH H, this bond is sp3 sigma bond to sp3. This bond is sp3s sigma bond. This bond is sp3 and 1s sigma bond. sp3 1s sigma bond. This is also sp3 s sigma bond. This is also sp3 s sigma bond. This is also sp3 s sigma bond. So I hope that you have understood the basic idea. Okay, now I'll show you that how a CH2 double bonded to CH2 molecule form. Now what happens is here C double bonded to C HH, just deviation from sp3 is just what will happen is, as I said, this is sp because there is sidewise overlap. Okay, can you see the orientation of sp3 hybridized orbitals? It is a tetragonal orientation and it is also a tetragonal orientation. So in tetragonal orientation, going with one sigma overlap, or the axis wise overlap in this case. Okay, but do you think that if the sp3 hybridization is there, a double bond can be created? Will this come closer to this? Will this come closer to this? Double bond means what? Another bond, एक सिंगल बॉन्ड हो गया है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करके, और एक डबल बॉन्ड फॉर्म करना है, तो आपको साइड वाइज ओवरलैप करना था, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में होता है, साइड वाइज ओवरलैप करना था. पी वाई पीजेड. अगर एक px ऑर्बिटल एक्सिस वाइज ओवरलैप करता है तो पी वाई पीजेड को साइड वाइज ओवरलैप करना था. लेकिन क्या है यहाँ पे, एक sp3 सिग्मा बॉन्ड हो गया है, दूसरा sp3 पाई बॉन्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. इसीलिए मैंने बोला था कि आंख बंद करके लिख दो कि डबल बॉन्ड होने से sp2 में कर पाएगा. क्यों? क्योंकि अगर आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देख रहे हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? ऐसा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर. sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? ऐसा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है. मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एक कार्बन एटम का अगर देखोगे 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, बट ये तीनों ने मिलकर हाइब्रिडाइजेशन बनाया है. इन तीनों ने मिलकर हाइब्रिडाइजेशन बनाया है. जब इन तीनों ने मिलकर हाइब्रिडाइजेशन बनाया होगा तो इसका मतलब ये है कि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया होगा और स्पेस में ऐसे अरेंज किया होगा जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है. अब क्या होता है कि एक pz ऑर्बिटल जो है वो ऐसे कॉपी के ऊपर में और कॉपी के उस साइड में नीचे में pz ऑर्बिटल दोनों लोब्स लेके बैठा हुआ है. ये तो थोड़ा ये जो तीन ऑर्बिटल्स है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है. और इसमें याद क्या रखना है कि ये जो ऑर्बिटल्स है इसमें s कैरेक्टर है 33% और p कैरेक्टर है 67%, क्योंकि sp2 है. एक s 2p, ठीक है, तो 1/3 और p मिलके 2/3, तो ये बन गया 33% और ये बन गया 67% ऑफ p कैरेक्टर. तो थोड़ा सा लंबा होगा p बॉन्ड जैसा. p का स्ट्रक्चर ज़्यादा इफेक्ट करेगा इसमें, ठीक है, और इसमें तो और ज़्यादा करेगा क्योंकि sp3 में 75% है. तो जैसा मैं बता रहा था कि ये तीनों मिलके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्रिएट किया है और pz जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया है, तो ये ऊपर से ऐसे रहेगा
मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन ये 3 डायमेंशनली थोड़ा ऊपर से या ऐसे थोड़ा नीचे से, मतलब कॉपी के ऊपर में या नीचे में है। अब इसके साथ में और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अगर ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ऐसे ड्रॉ करने से तो नहीं चलेगा। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा ऐसे ड्रॉ करता हूँ, हाँ, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, और P इसके ऊपर से है, PZ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, sp2 बॉन्डेड टू sp2 सिग्मा बॉन्ड बिकॉज एक्सिस वाइज ओवरलैप्ड। ओके, तो हो गया ना, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, तो एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड sp2 बॉन्ड sp2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। लेकिन बाकी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इधर से इधर से इधर से इधर से, और यहाँ पे H आके बैठ जाएगा, 1 2 1 2 आ गया H आके बैठ। तो यानी ये sp2s सिग्मा बॉन्ड sp2s सिग्मा बॉन्ड sp2s सिग्मा बॉन्ड sp2s सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे और एक जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा, ये PZ जो हाफ फील्ड है और ये जो PZ हाफ फील्ड है, इसमें साइड वाइज ओवरलैप होगा, ऐसे PZ और PZ ऐसे साइड वाइज ओवरलैप होगा। सर इसके लिए तो इन दोनों ऑर्बिटल्स को और पास, sp2 सिग्मा बॉन्ड जो है इसको और पास आना पड़ेगा ताकि ये दोनों पास आके साइड वाइज ओवरलैप कर सके। हाँ, वो तो होगा, लेकिन ये क्या होगा, PZ या PX PY भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों हाइब्रिडाइज नहीं होके ये और ये भी हो सकता था, ये और ये भी हो सकता था, ये रह सकता था, ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर। एनीवे PZ ही पकड़ के चल कहते हैं, तो PZ या PP पाई बॉन्ड। क्यों पाई बॉन्ड, क्योंकि साइडवाइज ओवरलैप किया है। तो आई होप कि अब समझ में आ रहा होगा कि C डबल बॉन्ड टू C रहने से यहाँ पे कोई भी और C रहे या कुछ भी रहे, H रहे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और वो भी sp2 सिग्मा बॉन्ड sp2, और ये sp2 सिग्मा बॉन्ड है, और ये sp2s पाई सिग्मा बॉन्ड sp2s सिग्मा बॉन्ड, जैसे मैंने बताया है। ओके, आई होप दैट ये समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे अगर एक कार्बन भी ला दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिखाया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि ये सोचो sp2 है और इसके साथ sp3 एक कार्बन लगा हुआ है, तो हो ही सकता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इधर से आके ये जो है, इसको अगर ये वाला कार्बन एटम सोचोगे तो यहाँ से हो ही सकता है हाइड्रोजन के जगह में ऐसा एक कार्बन एटम आके इस साइड से यहाँ से बॉन्डिंग किया है और लंबा चेन फॉर्मेशन किया है, ऐसा हो ही सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो छोटा स्ट्रक्चर अगर समझ में आगे जाता है तो बड़ा स्ट्रक्चर समझना उतना बड़ी बात नहीं है। तो आई होप दैट यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं। कार्बन जब कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड करता है तब क्या होता है, तो हम लोगों को पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। अगर मैं 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 पकड़ लूँ, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर ये दोनों मिलके, अगर एक s और एक p मिलके ऑर्बिटल बनाता है तो 2 sp ऑर्बिटल्स बनेगा। एक sp ऑर्बिटल ऐसे रहेगा और दूसरा sp ऑर्बिटल ऐसे रहेगा। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थोड़ा सा लंबा होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उससे थोड़ा सा मोटा और चपटा होता है, और ये sp3 है, ये sp2 है, और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो वो और ज़्यादा चपटा होता है और ऐसे होता है sp। सर ऐसा क्यों, क्योंकि sp3 में s कैरेक्टर जस्ट 25% है, p कैरेक्टर 75% है, तो p का जैसा ऑर्बिटल का शेप होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, s कम इफेक्ट करेगा। sp2 में s का 33% होता है और p का
67% होता है, तो ये भी थोड़ा सा चपटा होगा, लेकिन एस कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन एस पी में एस कैरेक्टर 50% रहेगा और पी कैरेक्टर 50% रहेगा। तो अगर 50% एस कैरेक्टर इफेक्ट करेगा तो एस ऑर्बिटल तो गोला होता है ना, तो इसका इफेक्ट आएगा, तो ऐसा चपटा होगा। एनीवे, तो यहाँ पे ये एक हो गया। लेकिन एक चीज़ जो भूल रहे हो, ये जो पी वाई और पी जेड है, तो पी वाई ऐसे रहेगा और पी जेड ऐसे रहेगा, ठीक है। ये पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स रहेगा। एस अब क्या होगा, अब सोचो यहाँ पे, और एक बार छोटा करके ड्रॉ करता हूँ। ये आपका हो गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये पी वाई और ये पी जेड। तो यहाँ पे और एक कार्बन एटम का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गया, इसका पी वाई आ गया और इसका पी जेड आ गया। अब क्या होगा, इसका जो एक sp2 ये जो है, ये क्या है, तो कार्बन और कार्बन में एक sp सिग्मा बॉन्ड बन गया, राइट। कार्बन कार्बन में एक sp सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा sp ऑर्बिटल का वो H के साथ बॉन्ड करेगा, H के साथ बॉन्ड करेगा, मतलब एक H भी बन गया। अब ये दोनों, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करेगा ऐसे, और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करेगा ऐसे। तो यानी यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आर पाई बॉन्ड्स। दैट ऑल्सो पी एक्स सॉरी पी वाई और पी जेड पाई बॉन्ड्स आर देयर। I hope that you have understood up to this much. So this is how the geometry is affected and everything is affected. So this is how the bonds are in triple bond and double bond and single bond. I hope that this is clear to you. Now, as you are clear with the structures, now let us go and learn some important facts. Sigma bond is much stronger than pi bond. Why? Because sigma bond is axis wise overlap and pi bond is side wise overlap. This is the first thing, remember. लेकिन अगर C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड sp सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड्स को भूल जाओ, ठीक है। और C और C के बॉन्ड में डबल बॉन्ड है, इसका जो एक सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 सिग्मा बॉन्ड है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 सिग्मा बॉन्ड है, राइट। सोचो दूसरा सब हाइड्रोजन से ऑक्युपाई किया हुआ है, हाँ। तो इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड है ये, उससे वीक है ये, उससे वीक है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि sp जब sp के साथ सिग्मा बॉन्ड करता है तो वो उस बॉन्ड में जो ऑर्बिटल्स है उसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है। s कैरेक्टर ज़्यादा है मतलब sp ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर स्मॉलर देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर स्मॉलर देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्योंकि sp2 में तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, sp3 में और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, p कैरेक्टर ज़्यादा चला आएगा, लेकिन sp में थोड़ा मोटा और चपटा है, तो इसका वजह से इसका जो ओवरलैप करके जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है sp ये थोड़ा सा स्मॉल बॉन्ड होता है। तो स्मॉल बॉन्ड्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, ओके। तो इससे ज़्यादा, इससे कम स्ट्रॉन्ग होगा ये, इससे कम स्ट्रॉन्ग होगा ये, क्योंकि ये लंबा है और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज़्यादा होगा, बॉन्ड भी छोटा होगा। इसमें बॉन्ड लंबा होगा, इसमें बॉन्ड और लंबा होगा, सिग्मा बॉन्ड्स। हाउएवर ओवरऑल ऑल्सो दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ,
राइट और रॉन्ग? ये उससे भी कम स्ट्रांग हुआ, मतलब ओवरऑल आप देखोगे 3 बॉन्ड 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड, तो ये दोनों कार्बन का लिंक ज़्यादा स्ट्रांग है, इसको ब्रेक करना ज़्यादा टफ होता है, इसको ब्रेक करना थोड़ा कम और इसको ब्रेक करना और भी इजी होता है, ये एक बात है। लेकिन अगर रोटेशन का बात करोगे, सोचो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से लिंक्ड है, अगर सिर्फ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिंक्ड है, जैसे कि यहाँ पे, तो इसको ना आप रोटेट कर सकते हो ऐसे, क्योंकि कोई भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसको आप इस कार्बन एटम को और इस कार्बन एटम को ऐसे जो बॉन्ड है इसको रोटेट कर सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, दोनों घूमेगा, आराम से घूमेगा, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैप है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि आप इसको भी घुमाओगे, ये वाला जो है इसको भी ऐसे घुमाओगे तो नहीं घुमा पाओगे, क्योंकि एक क्या हुआ है, साइड वाइज ओवरलैप है। जब आप घुमाने जाओगे तो ये टक करके खुल जाएगा, ठीक है, जब खुल जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसको घुमाना पॉसिबल नहीं है। तो इसको भी घुमाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी साइड वाइज ओवरलैप 2 जगहों में है, तो इसको भी घुमाना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी याद रखना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, C सिंगल बॉन्ड C, H C भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको एक्सटेंडेड रूप में सोचना चाहिए आपको, वो डिफरेंट चीज़ है। तो ये एक हुआ ऐसा ऐसा और ऐसा, और यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे H H H H H H, तो ये सब सिग्मा बॉन्ड से फॉर्मेशन है, इसको रोटेशन पॉसिबल है। अब इसके ऊपर देखो कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, लेकिन अगर C डबल बॉन्ड टू C करोगे और यहाँ पे H H करोगे, ये जो एक सिग्मा बॉन्ड है, ये जो sp2 सिग्मा बॉन्ड है, और एक जो PZ पाई बॉन्ड है, ये ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड तैयार करता है ऐसे। अब ये सोच रहे हो कैसे, सोचो कि ऐसा है ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये जो उसका जो PZ ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो साइड वाइज ओवरलैप किया है ना, ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड तैयार कर देता है ऊपर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये देखोगे C ट्रिपल बॉन्डेड टू C, तो ये कुछ ऐसा, ये एक और ये एक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे और एक कार्बन लेना पड़ेगा, नॉट हाइड्रोजन, ये एक, ये ओवरलैप है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे एक PY सोचो और एक PZ या PY ऐसे सोच सकते हो। तो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप। तो इसमें क्या हो रहा है कि C ट्रिपल बॉन्ड C में और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है ऐसे ऊपर में, इसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि पाई बॉन्ड से फॉर्म हुआ है, इसको भी बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इसको बोला जाता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, इसको क्या बोला जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलाउ करता है, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड C में नहीं रहता है, डबल बॉन्ड में रहता है और ट्रिपल बॉन्ड में रहता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलाउ करता है ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस उसको, उस कार्बन एटम को अटैक कर सके, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस क्या कर सके, उस कार्बन एटम को अटैक कर सके रिएक्शन के समय, कोई भी रिएजेंट जो तुम यू नो व्हेन यू विल मूव अहेड यू विल अंडरस्टैंड। ओके, अगर ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो कोई भी न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट, सपोज जिसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे N जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस कार्बन एटम को ज़्यादा अटैक करेगा, इस कार्बन एटम को उससे भी ज़्यादा अटैक करेगा, लेकिन इस कार्बन एटम को अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे ऊपर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। ये एक बड़ा बात है। सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी या सी सिंगल बॉन्ड सी, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों बोलूँ? क्योंकि ये sp बॉन्ड है, यहाँ पे sp सिग्मा बॉन्ड है, इसमें sp2 सिग्मा बॉन्ड है और इसमें sp3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें क्योंकि हाईएस्ट दैट इज़ 50% s कैरेक्टर है, 50% s character is there. So what happens? It has 33% s character and it has 25% s character. Okay, so s orbital is small, the closer orbital to the nucleus. Okay, so if the character of s orbital is more, okay, it will have more tendency to pull the bonded pair of electrons towards itself. So this carbon, what is electronegativity? Suppose hydrogen and oxygen is there, oxygen pulls the bonded pair of electron towards itself. So in the same way, these carbon atoms have more tendency to pull the bonded pair of electrons when bonding with any other, suppose H or maybe on any other molecule, suppose A or atom. Okay, they pull the bonded pair of electrons more. This carbon pull the bonded pair of electron more. It is much more electronegative than this. Okay, so I hope that these basics are clear to you.